हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ हमारे पॉडकास्ट की न्यू सीरीज़ में, एक न्यू एपिसोड में और एक न्यू गेस्ट के साथ। तो जो हमारी न्यू गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर जसलीन कौर एंड हर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट इज़ रियली लॉन्ग। सो लेट्स बिगिन। आई इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर जसलीन कौर। शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट MA हिस्ट्री. She is also NET JRF in history. She is PhD in history and also the JKS 2023. She was amongst the toppers. So आज का कॉन्वर्सेशन जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम और प्रिपरेशन ये सब साथ में कैसे शुरू किया. विदाउट मच अडो, लेट्स बिगिन. सो हेलो जसलीन, वेलकम टू द Hi, पॉडकास्ट. thank you. तो आप सबसे पहले आप बताइए कि हाउ इज़ द फीलिंग ऑफ बिकमिंग JKS ऑफिसर. I think सबसे ज़्यादा more than happiness it is contentment because this is what everybody is striving for. I was also striving for that only. और because मैं PhD भी कर रही थी तो there was a balance between, there had to be a balance between the two. तो मुझे लगता है it was more contentment कि now one thing is being done and I could focus on the next then. So contentment certainly. ओके. तो रिज़ल्ट का जो मोमेंट था वो कैसा था और वर यू प्रिपेयर्ड, लाइक इट वाज इन योर हेड कि आई हैव डन वेल सो आई विल बी देयर इन द लिस्ट, और देयर वाज सम अनसर्टेनिटी, या पहले से क्या आपको लगता था और किसने आपका रिजल्ट देखा, आपको कैसा उस मोमेंट पे फील हुआ, द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ रिजल्ट. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लास्ट इंटरव्यू वाले जिस दिन लास्ट इंटरव्यूज़ थे कि उसी दिन हमारा रिजल्ट आ जाएगा. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो टू चेक द रिजल्ट, बट ऑब्वियसली देर वॉज सम लाइक रूमर्स इन द एयर कि हो सकता है कि आ जाए. And it is an interesting story. I was out with my friends and my supervisor for a cup of tea, and we were sitting and having chai. All of us are quite fond of chai. So हम चाय पी रहे थे और एकदम से ही I just happened to check my phone, तो notification थी, and surprisingly it was your husband who happened to check my result, and that was the moment. It was very happy moment also because I was surrounded by people who had been through me in the journey, my friends, my supervisor. And then I just rushed home, told my parents. They have been very supportive, and that was it. It was very simple, but obviously it was very, I would say, euphoric and energetic. राइट. Yeah. सो आपने बताया अपने कॉन्वर्सेशन में कि आपने PhD के साथ ये प्रिपरेशन की है, तो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट एंड हाउ डिड यू मेंटेन द बैलेंस, बिकॉज एज वी नो रिसर्च इज़ ऑल्सो अ टास्क एंड देन दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट एनी एग्ज़ाम, इट्स द Yeah. मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री. सो I think PhD is one thing that I had always wanted to do, especially when I came into the masters. I knew that research is something that I had to pursue and I wanted to pursue. So that was always number one for me. And preparing the exam and appearing in the competitive was the second thing for me. So research kept me level-headed. Although it is tough, and I still feel that it is tougher than any competitive exam that you appear in, research is one thing जिसने मुझे बिल्कुल level-headed रखा. It was my fallback upon. I could always go back if I got frustrated, or if whenever I was happy with the results, I would always go back to research and get rejuvenated. So for me, research was an option. It was never an option to, my secondary or like a third option. No, it was always primary for me. It is still primary for me. So it kept me going. It was really, it gave me positive reinforcement always. And as long as balance is, you need to maintain a balance. We are at an age कि हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ ये करेंगे और हम सिर्फ वो करेंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और हम अगर दो चीज़ें कर रहे हैं विच आर ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड एंड इक्वल वैल्यू, तो हमें बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा. और बैलेंस आता है कंसिस्टेंसी से. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. नॉट दैट कि हम 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ लें. दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. बट हमें 2, 2.5, 3, 4 घंटे एवरी डे वी हैव टू इन्वेस्ट इन वॉट एवर थिंग दैट वी आर डूइंग. अगर मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे 1-1.5 घंटा रिसर्च को भी देना ही था, शायद उससे ज़्यादा देना था. बट सिंस आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, तो वो टाइम कम दे रही थी मैं, बट दे रही थी. और एग्ज़ाम्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, because there is so much to do. It is not just your subject that you're preparing. You're also preparing everything related to, there is current, and everybody who's preparing knows that there are different components. So you have to strike a balance through time management. And at the end of the day, you have to be very positive
within yourself also that I'll be able to do it. So if you feel that you'll be able to do it, you will be able to do it. I really believe that. जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इज़ द Yes. की. सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और इस दौरान जो पूरी आपकी जर्नी रही ऑफ बिकमिंग अ KS ऑफिसर, वो कैसी रही? उसमें कौन आपके सपोर्ट सिस्टम रहे और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? It was my third attempt. The first attempt was the infamous 2016 attempt. उसके हमने बहुत late papers लिखे, I think 2018 में. And by that time I had enrolled into PhD. तो मुझे काफ़ी clarity हो गई थी कि research is something which is like important to me. तो मुझे ज़्यादा focus उस पर करना है. वो attempt था एक which did not happen. Then इसके पहले वाला 2021 वाला, that was a very serious attempt on my part. So that also did not happen. So I was quite clear कि अब शायद this is not meant for me. And this time, interestingly, I was not going to take the papers, but you pushed me to go and take the exams. So I think you also had a role to play. और जहाँ तक journey है, I would say that we were 3 people. 2 of my very close friends, Sahil and Shubham, and me. We started preparing almost together. And they were the more serious candidates. I was not that serious, but of course जब आप पढ़ रहे होते हो तो there is an intention to do better only. तो हम तीनों ने हमेशा साथ में पढ़ाई करी और काफ़ी serious तरीके से भी करी हमने पढ़ाई. So that was, in that way, my peer group really helped me. We were there to like pick each other up also, क्योंकि हम तीनों के ये मतलब ये तीनों attempts they were not really good. And attempts were good, but the result was not good, I would say. But we were there to pick each other, and also क्योंकि हम पढ़ रहे थे और we were doing research and everything else, so we had certain things to fall back upon, and we always came back to each other. तो वो journey वैसे निकली है. 6-7 years they just went by in doing so much. We would often take breaks and just roam about, discuss various things, and make moments lighter for each other. जैसे कि जो last attempt था, it was really good, but the results were not good. The results were not positive, I would say. तो उसके बाद all of us felt, I particularly felt that this is not meant for me. But then your peer group always pushes you to do better, and if you have such a peer group, I think you're quite lucky. And for me, both my peer group and my family, because my family never pressured me to get a job. For them, if I was studying, that was, they were happy with that, and I was also happy with that. तो वो भी बहुत काउंट करता है कि आपकी फैमिली भी आपको जॉब के लिए या सेटलमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं कर रही. दैट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो. जी बिल्कुल. और जैसा आपने बताया, क्योंकि हमें पता है नेचर ऑफ एग्ज़ाम ऐसे है कि इट ऑब्वियसली टेक्स अ ईयर, क्योंकि प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, एंड यू प्रिपेयर्ड फॉर इट मल्टीपल टाइम्स. तो फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ very nice, because it has to be very sane to prepare well? So what did you do for that, and how did you take the setbacks? Like, you were very prepared for the 2021 attempt and it did not happen the way you wanted it to happen. तो जो setbacks आए, जो exams आप नहीं qualify कर पाए, उनको आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, या आपने पर से, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स दे रहे हैं एंड दे आर स्टिल नॉट सक्सीडिंग, तो उनके लिए आप उनको क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? यस, आई थिंक देयर इज़ नो सेट मंत्रा. कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ की थी ओ हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ द रिज़ल्ट. यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच के प्रिपरेशन करोगे तो आप कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहोगे. तो वो तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव. आई डू नॉट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट, एंड दैट इज़ वन थिंग जो मैं एस्पायरेंट्स को भी बोलूँगी. हमारा काम मेहनत करना है, कर्म करना है हमने, एंड वी डू नॉट नीड टू गो लेफ्ट राइट एंड सेंटर. मेहनत करें और थोड़ा इंटेलिजेंटली मेहनत करें. वी डू नॉट नीड टू रीड एवरीथिंग ऑल्सो. बाकी रिज़ल्ट वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं है. वो हमेशा, इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू रीच अ प्लेस, वी विल सूनर और लेटर. अब वो सूनर और लेटर के बीच की जो जर्नी है, इट इज़ ऑलवेज टफ. उसमें अपने आप को सेन रखने के लिए आई थिंक यू नीड टू हैव थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस. डू एनीथिंग एल्स. चाहे आप कोई डिस्टेंस से कोर्स कर लें, चाहे आप कोई डांस क्लास कर लें, कुछ भी कर लें, बट डू समथिंग एल्स दैट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो.
कुछ भी कर लें, यू कैन लर्न सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी ऑनलाइन कोर्सेज. जस्ट डोंट सिट इन अ रूम एंड प्रिपेयर, बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपके कमरे की चारों दीवारें आपको तंग करेंगी, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, एक अटैम्प्ट नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं. दैट डज नॉट हेल्प. And talk to people, make a peer group which is supportive, learn from them, teach them certain things, talk to people who are like minded, that really helps. And do not think about the result. I know ये बहुत ही ऐसे लगेगा कि बहुत ही ऐसे far fetched thought है, लेकिन अगर हम रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहेंगे देन आई थिंक हमारा प्रोसेस वीक हो जाएगा. हमारा प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए. प्रोसेस इज़ कि हमने मेहनत करनी है, ये हम कर सकते हैं, ये हम करेंगे. A result is something that can't be controlled, and even when the result is not in your favor, think about it for a day, 2 days, 3 days, that's it. Do not make that result a burden on your head. Move forward. You have to move forward. You can't stick to a place. Very nice and motivating rather. I hope so. So next question है जो बहुत ही often पूछा जाता है, and everyone who sits and begins to prepare, they often look for answers. तो वो सबसे जो पूछने वाला most asked question in this exam is how many hours did you study? ऐसा कुछ है, because I also see sometimes people tend to say we studied for 18-20 hours, we studied for 10 hours, for 12 hours. How many hours did you study, and what would you recommend जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको at least कितने hours पढ़ना चाहिए? आई थिंक हम आवर्स में क्वान्टिफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि सब लोगों का सिटिंग कैपेसिटी डिफरेंट है. मेरी बहुत कम सिटिंग कैपेसिटी है. आफ्टर 15 to 20 minutes आई बिकम जिटरी. मैं तो क्लास में लाइक राइट नाउ माई ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन, आफ्टर 40 minutes माई माइंड गोज ब्लैंक. सो मेरी तो बहुत कम है. बट द पॉइंट हेयर एंड द की हेयर इज़ कंसिस्टेंसी. फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म लगाया है और आपको ये है कि मुझे एग्ज़ाम ये वाला क्लियर करना है, तो आपके पास 1 साल का प्रोसेस तो है ही है. तो एटलीस्ट आप उस 1 साल में या 6 महीने जितने भी आपके पास टाइम पीरियड है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे. अब आप वो 2 घंटे एक दिन में कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, 4 कर रहे हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर सिटिंग कैपेसिटी. बट इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. और आप उस कंसिस्टेंसी में पढ़ क्या रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने सोर्स मटेरियल को लिमिट करो. सोर्स मटेरियल शुड नॉट बी हेयर वायर कि मैं ये भी पढ़ लूँ. फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड था, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बस मतलब सब चीज़ें जो हिस्ट्री पे लिखी हुई हैं वो सब पढ़ लूँगी. ऐसा नहीं हो सकता. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो अपने सोर्स मटेरियल को लिमिट करो. येस, यू नीड टू रीड गुड सोर्सेज. आई वुड से यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम NCERTs. दे मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग. और sometimes I feel that if you have the knowledge of the NCERTs, you are good to go. So limit your sources, be consistent for whatever time. It does not matter 18 or 20. तो मुझे लगता नहीं है humanly possible है. That's a very Elon Musk thing to say. But that's I think the key is consistency. तो जैसा आपने बताया आपका सब्जेक्ट जो ऑप्शनल था वो हिस्ट्री था. तो आप बताएं कि उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की. मोर देन दैट आप बताएं कि हाउ शुड आवर एस्पायरेंट्स सेलेक्ट देयर ऑप्शनल. क्या जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जिसमें मास्टर्स, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है, Yes. तो दे शुड टेक, बिकॉज वी सी साइंस स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर probably sociology and Yes, anthropology, a lot of, yes. and then there are students who stick to their subjects like difficult subjects like economics and rarely taken subjects. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और क्या वो ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत पढ़ा हो पहले से, बिकॉज यू वर इन रिसर्च, सो यू वर ऑलरेडी वेरी मच थ्रू एंड थ्रू योर सब्जेक्ट. बट Yes. आपको एक तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की, एंड देन एस्पायरेंट्स के लिए कि उनको अगर आप रिकमेंड करेंगे कि वो कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करें, तो क्या रिकमेंड करेंगे? 2 तरीके हैं. एक तो अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको वो लेट गो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको उसके यू आर थ्रू विद द इन एंड आउट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑलवेज. तो आई वुड से वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड और यू हैव बीन स्टडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग PhDs कर रहे हैं, MPhils कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा. दे शुड स्टिक टू इट. हाउ एवर डिफ़िकल्ट इट माइट बी, दे शुड, बिकॉज कोई नई चीज़ चाहे आप 2 महीने में ख़त्म कर लोगे, बट आप इतना स्ट्रांगली उस पर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे जितना आप अपने सब्जेक्ट पे करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री और एन इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर फॉर एग्जांपल, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं.
हिस्ट्री में तो जैसे अगर आप एंशंट, जैसे आई वॉज हैविंग अ स्पेशलाइजेशन इन एंशंट इंडिया, तो मेरे को तो मिडीवल और मॉडर्न टफ लगता था, एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बट आई वुड स्टिल से कि स्टिक टू द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड. सेकेंड इज़ समथिंग दैट यू आर कंटेम्पलेटिंग कि मुझे क्या लेना है. अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है इस तरीके का और आपको चेंज करना है अगर, तो देन यू शुड गो फॉर दी ऑप्शनल्स दैट हैव लिमिटेड सिलेबस, सो दैट आप वो कम टाइम पे ख़त्म कर सको और उनको ओवर एंड ओवर रिवाइज कर सको. एक और ट्रिक है ऑप्शनल की कि आप जितना हो सके ना आंसर प्रैक्टिस करो. यू डू नॉट नीड टू जस्ट रीड इट, यू नीड टू राइट अ लॉट, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट दैम. ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि आपको एक सेट टाइम में 20 क्वेश्चंस का पेपर ख़त्म करना है. तो अगर आपको 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं तो उसके लिए आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्पीड भी और आपका आइडिया, आपका लाइन ऑफ थॉट भी. तो आई थिंक वही चीज़ है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर very thorough with your subject. So the choice should be either based on your liking or something that you have read over a period of time. And second, अगर आप नए तरीके से शुरू कर रहे हो तो choose a subject again which is to your liking, yes, but which has a limited syllabus so that you can revise and write it again and again. That is how I would see it. जी. So the next question is अबाउट कोचिंग, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हमारे यहाँ पे बहुत है. तो क्या आपने इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ली थी, या आप रिकमेंड करते हैं कि लोग कोचिंग लें, और अगर ली थी तो कहाँ से, और किस तरीके से कोचिंग जो है आपके पर्सपेक्टिव से हेल्प कर सकता है? पर्सनली आई डिड नॉट गो फॉर कोचिंग बिकॉज ऑल्सो क्योंकि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ रही थी और कब से पढ़ रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी. एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए तो मुझे कभी भी नहीं लगा. और जो GS का पार्ट होता है दैट इज़ मोर सो ऑन यू कि आपको वो कैसे प्रिपेयर करना है. सो आई नेवर फेल्ट द नीड टू टेक कोचिंग. ऑफ कोर्स इफ़ समबडी फील्स कि उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो वो ज़रूर लें. 6-7 मंथ्स ट्राई करें, सुने. बट आई थिंक वी हैव सो मच एक्सेसिबिलिटी राइट नाउ ऑन यूट्यूब एंड देयर आर कोर्सेज ऑनलाइन. वी आर सो मच फेमिलियर विद दृष्टि IAS एंड विजन एंड एवरीथिंग इज़ सो एक्सेसिबल, जस्ट अ क्लिक अवे. तो मुझे लगता है कि आप अगर नहीं भी जा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, दैट्स फाइन, बट आप कुछ तरीके का कोर्स ज़रूर ले सकते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ इनिशियल आइडिया कि मुझे ये वाले बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट माई ऑप्शनल वॉज ओके, सो आई हैड टू बी अ बिट मोर बेटर इन द जनरल स्टडीज़ वाला एस्पेक्ट. तो उसके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें देखनी है. ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग उनमें हेल्प करेगी, बट आपको एक पुश मिल सकता है. सो अगर कोई बिगिनर है तो वो 6-7 मंथ्स ट्राई कर सकता है. आई डिड नॉट नीड felt the need to, because again I told you I had a peer group which was also preparing, so we were preparing together. I think we were coaching each other more like. So it was, I never felt the need. Yes, but I joined a what is that, like when the mains का result, pre का result comes, you join a answer writing series. So I joined a test series, जो भी कि मैंने complete नहीं किया but वो मैंने join करा था, और I wrote few answers and papers. That is for your own self, to check your speed, to check your ability. आप अपनी जब आप questions पढ़ते हैं तो वो करना भी चाहिए, because you need to comprehend a question to write an answer. So that is going to test your writing ability, and that gives you the motivation to write. बिकॉज स्टिपुलेटेड ही टाइम रहता है. एग्जैक्टली. तो आपको पेपर में लिखना भी है ना जी. तो कोचिंग पे मेरा बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ अ कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस. बट इवन इफ़ यू डू नॉट डू एंटर सम काइंड ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी जो आपको ऐसे मोटिवेटेड रखे, आई वुड से. थैंक यू. और अब आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप you've been a star in academics, like ever since I know you. So academics obviously would have helped you. Yeah. क्योंकि आप बहुत अच्छे से गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज में बहुत मेरिटोरियस, देन कमिंग टू नेट JRF, देन PhD. तो आपको इस साइड का भी बहुत एक्सपीरियंस है, एंड देन कॉम्पिटिटिव का भी बहुत एक्सपीरियंस है. यूजुअली पीपल चूज 2 out of 1. Either they go for academics or they go for competitive, because both of them are equally tough, rather challenging. Yes. But you have the experience, first hand experience of both. What do you think इनमें similarities क्या हैं और differences क्या हैं आपको लगे, and what do you think
क्योंकि आप जैसे JRF भी हैं और आप KS भी हैं, तो आपको क्या लगता है JRF के एग्ज़ाम ने आपकी हेल्प की है KS में, या ये दोनों एग्ज़ाम्स अप्रोच में कैसे अलग हैं? तो सो दैट फॉर द व्यूअर्स, क्योंकि हमारे पास बोथ कैटेगरी के Yes. व्यूअर्स रहेंगे. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एकेडमिक्स इज़ वे मोर टफर दैन दिस एग्ज़ाम. I do not want to start a debate, but I think for जी, me ये it was. personal Yes. opinion. Because academics demands a lot of strength of character. I'm sure this exam does too, but since it was not my first love, academics was and it continues to be, तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा ज़्यादा investment था और उसमें ज़्यादा effort भी था मेरा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि that for me was tougher because आप research कर रहे हो और आप कुछ नया लिखने की या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है with whatever limited sources we had, because I think all of us also went through COVID. All Yeah. the people who are in research would resonate. For almost 2 years our university was locked in. We had to, and there was a lot of cooperation from the supervisor. I have to say this. I was very lucky. I still continue to be quite lucky in that respect. I had a lot of support, but still you are doing something on your own and you need a lot of patience and a lot of character, you know, तो मेरे को लगता है कि academics is tougher. But अगर आप JRF के लिए prepare कर रहे हो, NET के लिए prepare कर रहे हो, that is a bit different from how you prepare for such kind of examinations, be it IAS or JKS or any competitive exams. JRF में you need to have a very thorough understanding of your subject. बहुत कई बारी फैक्चुअल पूछते हैं, कई बारी कंसेप्चुअल भी पूछ लेते हैं, बट बहुत फैक्चुअल भी पूछते हैं, तो आपको माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए. जो आपकी बेसिक किताबें हैं कोई भी सब्जेक्ट की, आई एम श्योर यू वुड हैव डिफरेंट बुक्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर, आई वुड से 10 बुक्स फॉर हिस्ट्री, आपको उनकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जहाँ तक JKS की बात है, यू कैन ऑल्सो डू विद फ्यूअर बुक्स, जो कि एक सेट लिस्ट रहती है, NCRTs होती हैं. You have, I don't want to repeat the names, everybody knows the names. बिपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, many books, but वो एक सेट लिस्ट रहती है. अगर आप वो पढ़कर जा रहे हो तो you are done with your syllabus. लेकिन JRF के लिए ऐसा नहीं है. You need to go beyond the conventional boundaries. Also because it is not just a subject paper, you have a paper 1 which is a bit dynamic. उसमें research aptitude, teaching aptitude, वो सब factors भी रहते हैं, components होते हैं. I was very bad in them. So history was my saving grace there also. But you need to be very focused on the minute details, and you cannot limit the syllabus in JRF. For JRF you cannot. For these exams you can, and there is a lot of information available. You just need to choose what kind of information aligns with your तैयारी, तो आपको वो करना पड़ेगा. जी. सो इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू जो है वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तो आप अपने इंटरव्यू आपका कैसा गया और आपने क्या प्रिपरेशन की, और जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए कोई टिप्स की हाउ टू फेस द इंटरव्यू? ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू. इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू. इसके पहले मेरा PhD की जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो एक इंटर डिपार्टमेंट टाइप इंटरव्यू था. तो दैट वाज लाइक अ स्मॉल स्निपेट दैट आई हैड टू गो थ्रू, बट वो क्योंकि सब टीचर्स आपको जानते होते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हो, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. दिस वाज समथिंग दैट आई हैड टू एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, and I think it is my interview that got me into the list. It was one of the best experiences of my life. Interview के लिए I had taken 1 or 2 mocks, but I knew that they were just a formality. क्योंकि mock में आप क्या करते हो और actual आप वो क्या करते हो, that's, I think it's really different. Having faced the two, I can say. So somebody who's appearing for the interview, please go for a mock or at least 2, just to just to become open with the process. आपको एक idea लग जाएगा और हाँ acquaint हो जाओगे आप. Other than that आप expect ये नहीं करके जा सकते कि जो मैंने mock में अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरा वहाँ पर भी अच्छा होगा. That day really matters. Your state of mind matters. I had a really good experience क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बात कर रही हूँ इंटरव्यू में. I never felt कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मुझे बहुत it was a very fulfilling experience.
और that was the only thing I wanted. When I went for the interview, I wanted कि मेरा interview अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे मेंस में कितने मार्क्स हैं. So you want to give your best attempt. So I think interview में you have to be very raw, be yourself. आपकी personality show होनी चाहिए. It really, I think to an extent it doesn't matter कि आपको कितना आता है, क्योंकि वो आप मेंस में लिख आए हो और आपको आता है तभी आप इंटरव्यू में पहुंच गए हो. यू नीड टू शो योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू engage the panel, and they should feel that they are talking to somebody who can actually take the responsibility. So be yourself, be confident, don't be over or under confident. मुझे तो आता ही है is a very bad feeling. ऐसा हमें कुछ नहीं आता, हम सीखते हैं, we learn, and then हमें आता है. People who are taking your interview are way ahead of you, they are more experienced. So it is not कि आपको आता है और उनको नहीं आता होगा. वो बैठ के आपसे पूछ रहे हैं. Engage them, be polite, have a smiling face, that always helps. And if you do not know anything, बहुत politely आप decline कर दें कि सर मुझे नहीं आ रहा है. I think they understand the pressure. They know that you are under pressure, but don't show that pressure. And yes, you have to be confident and try to live it as an experience, because that time is not going to come back. बहुत सारे लोग हैं जो different types के एक्सपीरियंस करते हैं इंटरव्यूज़ में. एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आएगी. आई फेल्ट दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी. मुझे पता था कि इसके बाद मेरी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी शायद ना आए. सो आई हैड टू बी वेरी रियल and also very raw. Don't lose your personality in stress. That is very important. Thank you for sharing the tips. और आपका जैसे 39th रैंक है, Yes. तो प्रेजेंटली आप आई एम श्योर ट्रेनिंग में हैं. जी. और आपने क्या ऑप्ट किया है? आपने पुलिस फोर्स ऑप्ट किया है या अकाउंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्यों ऑप्ट किया है और अभी कैसा चल रहा है, तो आप ये बता दें थोड़ा सा. So my rank was 39, but when I filled the form, I had given. It happened so that I gave preference to accounts, and that was the service that was allotted to me. Police is something now I feel कि यार कर लेते हैं, लेकिन it's just fancy. But I had opted for this, so it happened that way. So right now my training is happening, and I am at Nazati, which is the accountancy institute here. And my admin friends are enjoying their postings. So it does not really matter what you get, because जब हम prepare कर रहे होते हैं तो it's like कि हमें list में आना है. So everything is equal and equally important. One thing that I've learned after my selection is that you are a public servant, and that is what you are. You are a servant of the public. Hardly matters what and where you are being posted, what department is being allotted to you. आप वही करने आए हो. That is what you prepared for, and that is what you are going to entail for the rest of your career. You need to serve the public in one way or the another. आपका बस ये होना चाहिए. A lot of people have debates on this is the better service, that is the better service. I'm sure every service has its perks. We never get satisfied, but you are essentially a servant to serve the public, and that is how you should just go about it. Take each day as it comes to you. Learn, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफिस में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और सीखते भी हैं. उन सब चीज़ों को हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस में डालना पड़ेगा. एंड वी शुड जस्ट there is a paper, full ethics paper that we write. I'm sure you know that, and everybody who's preparing knows that we write a ethics paper, both in the civils exams. तो अगर हम सब लोग जो एंट्रेंस हैं सर्विसेज में, अगर हर साल कितने सारे बच्चे वो पेपर्स लिख रहे हैं, अगर वो जितने भी सिलेक्ट होते हैं सर्विसेज में, अगर वो उस एथिक्स को थोड़ा सीरियसली ले लेंगे, तो आई थिंक आवर सर्विस इज़ गोइंग टू चेंज. So that is what I believe in. I had filled in accounts. However that happened, I am very satisfied. I am happy about it. Again, you said there are people who are struggling to get into the lists. So that should not be the criteria what we get. The criteria is how you can contribute even in a smaller way. So that happens
only when you understand that you need to maintain certain ethics and morals. And I'm in awe of your humility. Very few people say that once they reach a status, they are like, मतलब we are officers, and here you are telling that you're public servant. मुझे लगता है ये attitude बहुत ज़रूरी है तैयारी करने वालों में. At the end of the day, you're going to serve the country. You're not the boss. You're a public servant. That is something which she always says, whether here or anywhere. She always says this. I think we should always go back to our 10th standard democratic politics books. That is where we learned that it is the there was a line, it was either 9th or 10th, Abraham Lincoln's line that it is by the people, for the people, of the people, democracy. Yes, we forget that because we go through so much. Everybody who's preparing goes through so much struggle. I did not have to go through any struggle. I'll be very honest. मैं पढ़ रही थी, मुझे घर से कोई परेशानी नहीं थी. I had all the resources. I was getting a very handsome JRF and then an SRF. So I had no problems. लेकिन बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो उस स्ट्रगल में ना we forget our basic ethics. So it is the public that is going to make us or break us. So we should always stick to that, and I would add that we should always be in humility, because there is a higher power. If we are out of place, that higher power is going to bring us back to our place. तो हमें हमेशा that is the beauty of the Indian society, क्योंकि हम सब बहुत भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, and we should always come back to that is the root. तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि भगवान हमें अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो नीचे भी ला सकते हैं. डेफिनेटली. सो फाइनल हमारा मैसेज जो भी आप एस्पायरेंट्स के लिए देना चाहें, और कोई फ्यूचर प्लान्स अगर आपके हैं और आप बताना चाहें यहाँ पे ऑन कैमरा. मुझे लगता है हम बहुत स्पिरिचुअलिटी के उस पर चले गए इन द लास्ट क्वेश्चन. दैट इज जस्ट व्हाट आई बिलीव. Future plans, I don't think we can control. Academics is something that I have always focused on. If something happens in that respect, that would be great. But this is currently I'm also like focused on the training and everything. Or for aspirants, I would say, if you want me to like give a message, I don't think I'm anybody to give anybody a message. सबकी तैयारी के तरीके अलग हैं, सबके struggles अलग हैं, सबके family values अलग हैं. Find two options. Preparation करना is very good. और ideal world में हम ये बोलते हैं कि मुझे बस यही करना है और यही बनना है. ऐसा नहीं होता है. Destiny has its part. So find something other than just preparation which makes you a lively human being. वो भी करो और ये भी करो. तो एक तो वो है. दूसरा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ में कोई पढ़ाई भी करिए. दैट विल टेक ऑफ मच ऑफ योर स्ट्रेस अवे. आपकी जो एनर्जी है वो कहीं और भी चैनलाइज्ड होगी. एक चीज़ जो मैंने नहीं की, मुझे लगता है जो ज़्यादा लोगों को करनी चाहिए, क्रिएट स्मॉल बजट्स फॉर ट्रैवलिंग. यूज टू ट्रैवल, एंड मतलब हमें फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें बहुत लैविश ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड, बिकॉज दैट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. And fourth thing that I would say is read as much as you can. Fiction, non-fiction, whatever literature, but read. It opens your mind. So those 4 things, and I would just say that have a very supportive peer group. I was very lucky from family side also and from the peer group side also. You really grow as a human being, and that is what you need. And pray to the Almighty. You will reach your destination sooner rather than later. So that is what I would want to say. Thank you so much, Jasleen. It was a pleasure talking to you and pleasure having you on our channel. I hope I was not all over the place. Now I feel that I was. No, you weren't. Okay. It was great. Thank you so much.